उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मनोज सर स्टार्ट ऑडिबल ഉണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലീഡേഴ്സ്. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. കേരള ഓഫീസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നമ്മുടെ ബയോട്ടോറിയം കമ്പനിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ MD ഡോക്ടർ സാഗർ ജോഷി സാർ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ബയോട്ടോറിയൻസിനെയും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗ്രേറ്റ് അപ്ലൈൻ ലീഡർ മോട്ടിവേറ്റർ പ്രിയങ്കരനായ റഷീദ് സലീം സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട്. ഞാൻ മൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുകയാണ്. റഷീദ് സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കം റഷീദ് സാർ. എല്ലാവരും നല്ലൊരു കയ്യടിയോടി റഷീദ് സാറിനെ സ്വീകരിക്കാം. Thank you, great leader, great motivational trainer, fantastic superstar Kerala in the Manoj Muralidharan sir. Great achiever. Thank you very much. And entire Kerala team ko congratulations for the new office by E-Biotorium. 3 years mono varsham E-Biotorium Kerala team India le number 1 team ആയിരുന്നു. 3 years continuously. എല്ലാവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ടീം വർക്കിന്റെ റിവാർഡ് ആണ് സാഗർ സാർ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇപ്പോ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ബെയറർ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീം വർക്കിനെ പോലെ മനോജ് സാറാണ് അവിടുത്തെ ഫങ്ഷനിങ് കേരള ടീമിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് നോക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പില്ലർ ഉണ്ട് അവിടെ കേരളന്റെ കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ വലിയ ഓഫീസസ് ഉണ്ട് ദാദറിലെ, ഡൽഹിയിലെ. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒരുവിധം ഒരു 30-40 ലാക്സ് ചെലവുണ്ട് കമ്പനിക്ക്. ഈ 2 ഓഫീസിന്റെ കമ്പനി ഇപ്പൊ പുതിയ പ്ലാനിങ്ങിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചില് ഇന്ത്യയിലെ കുറെ സ്റ്റേറ്റിലെ ന്യൂ ഓഫീസ് കൊടുക്കും. അത് ആക്ച്വലി കാരണം എത്ര ഞാൻ ചോദിച്ചാലേ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എത്ര ആൾക്കാർ ഈ ദാദർ ഓഫീസ് കണ്ടു? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദാദർ ഇല്ലേക്ക് ഒരു തംസ് അപ്പ് കൊടുക്കും. എത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ മീറ്റിംഗിലെ ഇരിക്കണേ ദാദർ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കട്ടെ, ഒരു തംസ് അപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. ദാദർ ഓഫീസ് എത്ര ആൾക്കാർ വന്നു? ഓക്കെ, കുറെ ബാലഗോപാൽ, ബാലകൃഷ്ണ, ജയഗോപാൽ, ഉണ്ണികൃഷ്ണ, സുരേഷ് സർ, ലീന, സുജിത്, അനിത, വിനോദ്, എങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ബട്ടണിലെ തംസ് അപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. റിയാക്ഷൻ ബട്ടണിലെ തംസ് അപ്പ് സ്ക്രീനിലെ കാണും. എത്ര ആൾക്കാർ ഈ ദാദർ ഓഫീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ദാദർ ഓഫീസ് എത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടു ബോംബെ വന്നിട്ട്? സ്ക്രീനിലെ ഒരു ഷെയർ ബട്ടണിലെ ഒരു തംസ് അപ്പ് സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഫോണിലെ മീറ്റിംഗിലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. റിയാക്ഷൻ ബട്ടണിലെ ഒരു തംസ് അപ്പ് സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു. ഡൽഹി ഓഫീസ് എത്ര ആൾക്കാർ കണ്ടു? ഡൽഹി ഓഫീസ് സ്വന്തമായിട്ട് പോയിട്ട് ഡൽഹിയിലെ ഒരുവിധം ഒരു 2.5-3 crore ഫർണിഷിംഗ് അവിടെ സാഗർ സർ ചെലവാക്കി. 2-3 crore ചെലവ്. ഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ 3 ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും പോഷ് ഡൽഹി ഓഫീസ് ആയിരുന്നു. എത്ര ആൾക്കാർ പോയി? നോട്ട് ഈവൻ 2% ആൾക്കാർ ഡൽഹി ഓഫീസ് കണ്ടു. അതിനെ സാഗർ സർ ഇപ്പോ തീരുമാനിച്ചു, എത്ര വലിയ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ലേ, ഇതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചില് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലെ ചെറിയ ഓഫീസ് കൊടുത്തു. എല്ലാ ലീഡർമാർക്കും ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം എത്ര വലിയ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് ദൂരം ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ടീം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പണി ചെയ്യാല്, നല്ല ടീം ഉണ്ടാക്കിയാല് സാഗർ സർ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കൊച്ചിനിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ബാംഗ്ലൂരിലെ വരും, ഹൈദരാബാദിലെ വരും, തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റിലെ, എങ്ങനെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലെ, കൽക്കട്ടയിലെ ചെറിയ ഓഫീസ് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായ? സോ ഡൽഹിയിലെ വെറുതെ 20 ലക്ഷം മാസം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലെ 1 lakhലെ 20 ഓഫീസ് വരും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ. സിമിലർലി ദാദറിലെ അതാണ് ഇപ്പോ സാറിന്റെ തീരുമാനം. ഈ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ചെറിയ ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിലെ ആക്കും. മനസ്സിലായ? സാഗർ സാറിന്റെ വിഷൻ വലിയ വിഷൻ ആണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ലീഡർമാർക്കും ആൾക്കാർക്കും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോ കേരളയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം
എത്ര ഈ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ സാഗർ സർ റെഡി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? प्रतीक सागर सर आए हुए? अभी नहीं आए, मैं कॉल करता हूँ उनको. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗിലെ ഇന്ത്യന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള സ്വന്തമായിട്ട് ഭാഷാ പ്രശ്നമായ കാരണം പ്രതീക് സർ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അത് പ്രതീക് സർ ഡെയിലി രാത്രി 9 മണിക്കു കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഡെയിലി രാത്രി 9 മണിക്കോ കമ്പനിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ മാസംലെ 10 ദിവസം എല്ലാ മാസംക്കു 10 ദിവസത്തിന്റെ രാവിലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കോടീശ്വരനാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്പനിയുടെ കോടീശ്വരൻ. പക്ഷെ ഭാഷാ പ്രശ്നമായ കാരണം കേരള ആൾക്കാർ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വരണില്ല. പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ കോടീശ്വരൻ ആൾക്കാർ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഈ ഗ്രോത്ത് അക്കാഡമിന്റെ നോക്കുന്ന ആളാണ് പ്രതീക് കത്തൂരിയ. അയാളാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് അക്കാഡമി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി രാവിലെ 8 മണി എല്ലാ മാസം 10 ദിവസം ഈ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കും കമ്പനി സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എല്ലാ മാസം 10 ദിവസം എന്ത് ട്രെയിനിങ്, രാത്രി ഡെയിലി 9 മണിക്ക് കമ്പനിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും, ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ ഉണ്ടാവും, ടെസ്റ്റ് മണി ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഗ്രോത്ത് അക്കാഡമിന്റെ ആണ്. ഈ ഗ്രോത്ത് അക്കാഡമി നോക്കുന്ന ആളാണ് പ്രതീക് കത്തൂരിയ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭാഷ പഠിച്ചാലേ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു പോയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭാഷ അറിഞ്ഞാലേ. സോ സാഗർ സർ പറയും ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെപ്പൺ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ 29 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോകാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിലെ കേരളയിലെ മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആളിനെ പിടിച്ചാൽ മതി. ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആളിനെ പിടിച്ചാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് 29 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോ ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആൾക്കാരോ ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് प्रतीक सर नोट संसारिक പറയും. प्रतीक भाई आप अगर रेडी हो तो 2 मिनट आप बात कर सकते हो ताकि हम लोग वापस से टेक ओवर करें. आपको कुछ शेयरिंग करना हो तो यस हिंदी में बोल सकते हैं आप, चॉइस नहीं है. I have no choice. I can speak in English also, but I didn't understand that what Rashid sir said, but I know that he appraised me of my work and also stuff. So hello sir to all of you, hello to all the Kerala tycoons. I can say very dynamic team because as Rashid sir always say about you all कि क्या आपका कितना बेस्ट वर्क आप सब लोग कर रहे हो, क्या एंथुसियाज्म के साथ आप लोग काम करते हो, क्या आपका वर्किंग स्टाइल है. And you know what, you already create a benchmark for every e-Biatorians that how actually you can create a benchmark in the industry. जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी आज जो आपने इनकम कमाई वो बहुत जबरदस्त लेवल पे दिखाती है. और e-Biatorium आज 5.5 साल में टॉप 13 कंपनी में रैंक क्रिएट करती है, होल्ड करती है. तो आई कैन अंडरस्टैंड और आई बिलीव कि अगले 5 साल में टॉप 1 में भी आ सकती है बिकॉज ऑफ यू ऑल. और ये मेरा मानना है कि अगर इस 5 साल में इतने अचीवर क्रिएट किए तो आने वाले अगले 5 साल में कई और सारे अचीवर्स क्रिएट करेंगे और उसमें से 450 अचीवर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं. और केरला तो अपने आप में एक मोस्ट कहते ना इंडिया टॉप एजुकेटेड स्टेट हमारी केरला है. और वहां से अब जब एजुकेटेड स्टेट है और वहां से जब ये सब लीडर्स हमारे साथ हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एंथुसियाज्म, वो जोश, वो एक्साइटमेंट आप सब में दिखता है हमें. और बाय जो ये रशीद सर की मैं कहूँगा जो आज नॉलेज है, जो उनका सिस्टम है, जो रशीद सर ने कल्चर क्रिएट किया उसका एक एग्जांपल है कि आज उन्होंने अपनी टीम में कितने अचीवर्स क्रिएट करे हैं. सो all credit goes to first Rashid sir, to all the Kerala top most leader. और जिसमें मुझे अभी दिख रहे हैं यहाँ पे मुरलीधरन सर हैं और जितने हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स हैं केरला के, मनोज सर हैं, क्योंकि सबके नाम मुझे बाय नेम अभी याद नहीं है, पर जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं ये आप सबका कह सकता है कैन से ये आप सबका एक एक्साइटमेंट है, ये आप सबका आज आपका जो मेहनत है उसका रिजल्ट है जो आपकी टीम में एक अचीवमेंट आज क्रिएट हुई है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड all the best for your success, all the best for your all more black diamonds, upcoming black diamonds in your team. And I hope and I wish and I believe that in coming few years you will gonna create more 100 black diamonds in your team. I believe in all the Kerala team and especially on Rashid Salim sir.
Muralidharan sir, Manoj sir, and all the top most leader of the Kerala. So thank you so much. Thank you so much to all of you. And again, back to Mr. Rashid Salim. Yes, Rashid sir. Or Rashid sir, Yes, Sagar sir. thank you, Pratik sir. Thank you. Okay. Thank you, Pradeep sir. Thank you so much. Thank you. Thank you Okay. so much. Thank you very much, Pratik sir, for your inputs. And I believe Sagar sir is also ready. Before that, once. Okay. So सागर सर को हम लोग सभी लोग केरला से एक बहुत धमाकेदार वेलकम करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच सागर सर ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर केरला टीम. मनोज मुरलीधरन सर, के एस सुरेश, बेनी जोसेफ और बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं वहाँ पे. ट्रिवेंड्रम के कुछ लीडर्स हैं. अभी मैं यहाँ पे नाम जो है आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ. मीनवाइल प्रतीक सर. Yes. प्रतीक सर, आर वी रेडी टू हियर द ग्रेट मैन सागर जोशी सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. ओके, इंडिया में ഈ ബാറ്റോറിയം സാഗർ സർ ടോപ്പ് 13 ഈ ബാറ്റോറിയം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സാഗർ സാറിന്റെ വിഷൻ ആണ് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 10 കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, ടോപ്പ് 10 വരും. ഈ കമ്പനിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ആണ്. ശരിക്കും നമ്പർ 1. കാരണം സാഗർ സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാലേ 4800 കമ്പനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുത്തു ഒട്ടാൽ. സോ നമ്പർ 1 പ്രൊഫൈൽ ആണ് എം ഡിയുടെ. മാഗ്നറ്റിസമിലെ റിസർച്ച് എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡോക്ടറേറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ കിട്ടി റിസർച്ച് വേണ്ടി. അത് റിസ്പെക്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആണ്. പഠിക്കുന്ന ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ല, ഇത് റിസ്പെക്ട് ഹോണററി ടൈറ്റിൽ പറയും, ഡോക്ടറേറ്റ് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇത് ചില ആൾക്കാർ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാല്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി മാഗ്നറ്റിസം റിസർച്ച് വേണ്ടി. ഗിനീസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് 4800 ആൾക്കാർ. സോ പ്രൊഫൈൽ എം ഡിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് എം ഡിയിലെ നോക്കിയാലേ സാഗർ സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്പർ 1 ആണ്. പ്രോഡക്റ്റിലെ ഈ കമ്പനി മാഗ്നറ്റിസമിലെ റിസർച്ച് ചെയ്ത കാരണം പയോനിയർ ആണ്. പ്രോഡക്റ്റിലെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലെ നമ്പർ 1 ആണ്. ബിസിനസ് പ്ലാനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എത്ര കോടീശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഒറ്റ കമ്പനി എങ്ങനെയില്ല. 1 ഇയറിലെ എത്ര കോടീശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ കേരള ടീമിലെ 2 ആള് 10 മാസം 10 മന്ത്സിലെ 2 ആൾ കോടീശ്വരനായി. എന്റെ ടീമിലെ ഇപ്പോ കേരള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ടൈമില് 4 ആൾക്കാർ 4 പീപ്പിൾ 1 ഇയറിലെ കോടീശ്വരനായി. ഇപ്പോ ടോട്ടൽ 10 to 12 കരോഡ്പതീസ് കേരളയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബയോട്ടോറിയം. സോ പ്രൊഫൈൽ നമ്പർ 1, പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്പർ 1, ബിസിനസ് പ്ലാൻ നമ്പർ 1, പേ ഔട്ടിൽ നമ്പർ 1. 5 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഒറ്റ ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഫുൾ പേ ഔട്ട് ടൈം ടു ടൈം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ സാഗർ സർ വെയിറ്റിംഗിലാണ്. സോ ഐ വിൽ invite Sagar sir to continue. And Sagar sir, आप take over करके ऑफिस के. यस, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहला तो रशीद भाई का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ कि इन्होंने केरला को उठाने के लिए बड़ी मेहनत की. आज केरला जिस मकाम पे है तो रशीद भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साथ में है. और यहाँ पर मुरलीधरन जी है, के सुरेश जी है, उसके बाद मनोज मुरलीधरन, बेनी जोसेफ और तमाम लीडरों के नाम थोड़ा सा मुझे आप बता दीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को शक्लों से जानता हूँ, नाम थोड़े कम याद रहते हैं मेरे पास. ये सब इनिशिएटिव लेके आप काम कर रहे हो. और खास करके यहाँ पर मैं प्रतीक कथोरिया जी का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ. वो बड़ी हमेशा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ते एक जवान खून है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे. तो इसी तरह से हम लोग यूनिटी बना के काम करेंगे. और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लेके केरला में ऑफिस खोला और उसको प्रॉपर तरीके से संभालेंगे. मैं हमेशा मेरे स्पीच में बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अगर कोई काम करता है तो साउथ इंडियन, खास करके केरला ने साबित करके दिखाया. बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही सादगी से काम करते हैं. और कोई ज्यादा कंप्लेंट होती नहीं उनकी, बहुत छोटी मोटी होती है, बात अलग है, लेकिन बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं. क्योंकि आज मैं हिंदुस्तान के 28 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, तो एक अंदाजा आ जाता है आदमी के बिहेवियर से, बातचीत करने से कौन क्या है. तो इसी तरह से आप प्रोफेशनल बने रहिए. 5.5 साल 5 years 5 month हमें हो चुके हैं. मैं हिंदी में बात करूंगा, शायद आप समझ पाओगे कि नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है. मैं सीखूंगा, मैं मलयालम सीखूंगा बहुत जल्दी, लेकिन अभी फिलहाल तो हिंदी से ही काम चलाना होगा अपने को. राइट, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे.
और हिंदी का अपना एक मजा इसलिए है कि आप हिंदी अगर बात करते हो तो आप 28 राज्यों में काम कर सकते हैं, खास करके नॉर्थ साइड में बहुत काम होता है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, झारखंड, ये सब एरिया में बड़ा काम होता है। तो मैं रशीद भाई से जानना चाहूंगा कि उन्होंने मलयालम में बात की, तो ऑफिस से रिलेटेड आपने क्या बात की, थोड़ा सा मुझे समझाओगे तो अपन दोनों एक ही पटरी पे रहेंगे। वो मैं समझ नहीं आप क्या बोल रहे थे। के बारे में बोल रहा था कि कंपनी ने जो सेटअप डाल के दिया है लीडर्स को, ऐसा सेटअप इंडिया में कोई भी कंपनी ने दिया नहीं है। हम लोगों को जो दिल्ली ऑफिस करके दिया, दादर ऑफिस करके दिया, करोड़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है, वो कोई भी कंपनी ने इतना डेयरिंग करके नहीं किया है, लेकिन ई बायोटोरियम ने किया। अभी सागर सर स्ट्रेटेजी चेंज करके, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो स्टेट मेहनत कर रहे हैं, हर स्टेट में ऑफिस देने का प्लान कर रहे हैं। और हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाले, मैंने यहाँ पे पहले पूछा कितने लोगों ने दादर विजिट किया, बहुत कम लोगों ने विजिट किया है। और कितने लोगों ने दिल्ली विजिट किया, तो ना के बराबर है। बराबर सही बोले। तो मैं बोला इतना 3-3 करोड़ डाल के कंपनी ने वहां पे हार्डली 2% डिस्ट्रीब्यूटर्स विजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कंपनी अपना स्टैंड चेंज करके हर एक राज्य में जो भी टीम अच्छा काम कर रही है उनको एक ऑफिस से रिवॉर्ड कर रही है। जैसे अभी हम लोग ने केरला में किया है, कर्नाटक में, बैंगलोर में बाद में डालेंगे। तो धीरे धीरे जहां पे हम लोग 40 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं जो 2 ऑफिस के अंदर, उसकी जगह पे अपन 40 ऑफिस खोल सकते हैं सब जगह पे। तो हम लोग स्टैंड चेंज करके अभी छोटे छोटे ऑफिस डाल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो उसके रिप्लेसमेंट में ये सब हम लोगों का प्लानिंग है। और कंपनी का सपोर्ट रोज सुबह को और शाम को, रोज शाम को कंपनी 9 बजे को, मैं प्रतीक खदुरिया जी को एडिफाई किया, ये रोज शाम को ये ई ग्रोथ कंपनी का एजुकेशन बोर्ड संभाल रहे, और रोज शाम को ये 9 बजे को जूम मीटिंग लेते हैं, जहां पे कंपनी के करोड़पति लोग आके मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स लेते हैं। और हर महीने 10 दिन के लिए ई ग्रोथ एकेडमी एक बूट कैंप करके ट्रेनिंग चलाती है, हर महीने के लिए, एवरी 10 डेज, जहां पे कंपनी के करोड़पति लोग आके ट्रेनिंग देते हैं। अभी केरला वहां पे कनेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है, ना तो 9 बजे का, ना तो 8 बजे का सुबह का जो होता है। तो मैंने बोला कि अगर आप लोग हिंदी भाषा सीखोगे, अभी आप लोग केरला में ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हिंदी भाषा सीख लेते हो तो आप लोग 28 राज्यों पे राज कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाते हो तो 2 हिंदी वाले को पकड़ लो, उनके थ्रू आप लोग राज कर पाओगे। सही बात है। तो ये कंपनी का सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात किया, बूट कैंप का और रात का 9 बजे का प्रोग्राम का, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभी ऑफिस का हम लोग रिप्लेसमेंट में छोटे छोटे ऑफिस डालने वाले। परफेक्ट। थोड़ी देर के बाद हम केरला का ऑफिस का लाइव देखेंगे। एक शॉर्ट नोटिस पे भी 500-550 लोग आ गए। एक्चुअली 1 घंटे पहले मैंने लिंक भेजी थी। तो सही बताया आपने कि आज दिल्ली में हमारा बहुत आलीशान ऑफिस है, वहां पर एट ए टाइम 2000 लोग बैठ सकते, इतनी कैपेसिटी है उसकी। हमारा दादर का ऑफिस है, उसमें भी 200-250 लोग बैठ सकते, इतनी कैपेसिटी है। मेरा रोड का तो है, आप जानते हैं, ये बहुत बड़ा आलीशान ऑफिस है यहाँ पर। तो दिक्कत ये है कि आज दिल्ली जाता कौन है, और दिल्ली में सराउंडिंग ट्रैफिक से जाना, एक जगह पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने सही कहा कि हम लोग थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। छोटे छोटे ऑफिस होंगे, एक शहर में 2 भी हो सकते हैं। अब आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा 40 से 50 लाख रुपए है, खाली 2 ऑफिस का, दादर और दिल्ली का। हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे ऑफिस 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट के ऑफिस हर जगह पे हो जाए। जैसे जयपुर अच्छा चल रहा है, अहमदाबाद अच्छा चल रहा है, सूरत अच्छा चल रहा है, हैदराबाद अच्छा चल रहा है, तेलंगाना अच्छा चल रहा है, बैंगलोर अच्छा चल रहा है, मैंगलोर अच्छा चल रहा है, केरला बहुत अच्छा चल रहा है, और एक ऑफिस अपन केरला में इन फ्यूचर खोल सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है अपनी। तो मध्य प्रदेश अच्छा चल रहा है, बिहार अच्छा चल रहा है, झारखंड चल रहा है, बंगाल चल रहा है, आसाम में हमारा ऑफिस ऑलरेडी है, दिल्ली में भी एक छोटा सा ऑफिस करेंगे, हरियाणा साइड में करेंगे। तो छोटे छोटे ऑफिस करेंगे तो क्या होगा, उसका बेनिफिट मैक्सिमम लोग लेंगे। अच्छा, वहां पर 70-80 लोगों का बैठने का जगह भी अगर हो, और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और बैठने को जगह चाहिए। 60 से 70 लोगों का या 100 लोगों का कैपेसिटी का अगर हम लोग वहां पे हॉल बना देते, प्रोजेक्टर लगा देते, छोटा साउंड सिस्टम लगा देते, तो सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक 100 लोगों की मेरे ख्याल से 4-5 मीटिंग आप कर सकते। जो आज हम हॉल के ऊपर या अलग अलग जगह पे हम खर्चा करते, शायद वो पैसा भी अपना बचेगा, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो हम लोग ऑफिसों में यूज कर सकते हैं, और वहां पर आपका हक का ऑफिस हो जाता है, आप कभी भी वहां पे बैठ सकते हैं। आप अगर कोई हॉल लेते तो वहां पे टाइम की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बहुत बार तो हॉल मिलते भी नहीं है। तो हम क्या चाह रहे कि ये छोटे ऑफिस मतलब 1500 से 2000 स्क्वायर फीट, मेरे ख्याल से 70-80 हजार के अंदर बैठ जाता है। और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को भी हम चार्ज दे देंगे, तो वो अपना मटेरियल भी वहां पे बेच सकता है और ऑफिस का केयर भी कर सकता है, ऑफिस को संभाल भी सकता है।
तो इसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। आज दिल्ली का बेनिफिट केरला वालों को नहीं मिल रहा, दिल्ली का बेनिफिट महाराष्ट्र वालों को नहीं मिल रहा, गुजरात वालों को नहीं मिल रहा है, वहां पे खर्चा ज्यादा है। ओके, तो ये हेडक्वार्टर एक रख के हम छोटे छोटे ऑफिस खोलेंगे तो तकरीबन जो बजट आज हमारे पास है, तो हम 50 ऑफिस तो आज के दिन में भी खोल सकते हैं। इतना अभी आज हमारे पास बजट है, 50 ऑफिस हम भारत में खोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे, क्योंकि ऑफिस के जरिए बिजनेस मिलेगा। जो आज हम मीटिंगों के लिए, सेमिनार के लिए कंपनी पैसा देती है, वो हम ये रेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से 50-60 ऑफिस खोलना कोई बड़ी बात नहीं अगर हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं। तो अभी केरले के ऑफिस हम देखेंगे। देन अभी जहां पर लैंग्वेज का जो बैरियर है, उसमें अभी एआई टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें भारत के अभी 13 लैंग्वेज उसमें शामिल कर रहे हैं हम लोग। 13 लैंग्वेज एआई टेक्नोलॉजी से, खास करके साउथ की 4 लैंग्वेज रहेगी, मलयालम भी रहेगी, कन्नड़ा भी रहेगी, तेलुगु भी रहेगी। साउथ की सारी लैंग्वेज हम उसमें कवर कर रहे हैं। बंगाली लैंग्वेज हम उसमें कवर कर रहे हैं। उसके बाद आसामी, कश्मीरी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज में हम एआई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। तो आपको आपके लैंग्वेज में ही पूछना है एआई को। आप जैसे आमतौर पे बात करते हो, आपको आपके लैंग्वेज में ही जवाब मिलेगा, और आप क्या क्या पूछ सकते हो वो सारा का सारा जवाब एआई टेक्नोलॉजी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 24/7 365 डेज आपको रिप्लाई मिलेगा। रात को अगर 2 बजे में आपको कुछ पूछना है, कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी, तो आप एआई टेक्नोलॉजी को पूछ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में एआई टेक्नोलॉजी हमने बैकएंड में पूरा रेडी कर लिया। बहुत सारा काम मेरा सॉफ्टवेयर पे रेडी हो चुका है। कहीं कहीं पे छोटे छोटे एरर आ रहे थे, वो खत्म कर रहे हैं हम लोग। अभी एक बहुत बेहतरीन कैलकुलेटर सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं, ताकि आपका पेमेंट आप एक्यूरेट डाल सके, और प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हम लोग स्टॉक भी रखेंगे। अभी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट आए, मल्टीपल प्रोडक्ट आने के कारण इन्वेंट्री हम मैनेज नहीं कर पाए और स्टॉक इधर उधर हो गया, इसलिए 10-12 दिन थोड़ा शॉर्टेज रहा, लेकिन वो भी रिजॉल्व हो गया। तो अभी आने वाले दिनों में आपको प्रोडक्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी। 5-7 दिन की बात है, बाकी प्रोडक्ट आपको जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इन्वेंट्री हम लोग प्रॉपर मैनेज करें। ऑटो केवाईसी मेरा हो चुका है, बस अपलोड करना बाकी है। आज शाम को टेस्टिंग करके मैं डाल दूंगा, वो भी बहुत स्मूथ बना दिया मैंने। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। और मैं सारे लीडरों को कहना चाहूंगा कि एक जगह पे टिक के काम करो। जो कोई भी कंपनी किसी कंपनी को कॉपी करके ना, वो कभी भी लंबे समय तक नहीं चलती, लॉस में चली जाती है। आप एग्जांपल देकर वो ई-बाइटोरम को बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं रहा। ओके, तो ये ई-बाइटोरम का खुद का इन्वेंशन है। अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा रीपर्चेस। रीपर्चेस में मैं 60 से 70 अलग अलग डिवीजन के प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूं, जिसमें ऑल टाइप ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ अंडर गारमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ शूज, ऑल टाइप ऑफ ग्रोसरी, ऑल टाइप ऑफ एफएमसीजी। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट आपको हम लोग लेकर आएंगे। हमारी बायोमैग्नेट के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तो ऐसे 70 to 80 प्रोडक्ट जब आ जाएंगे, तो आपको रीपर्चेस के मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो आपका रीपर्चेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम 63,000 दे रहे एवरी 12 आवर्स, यानी दिन में 1,26,000। तो इतना बड़ा लेवल पे जब बिजनेस होगा, तब जाके ये पॉसिबल है। तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आएंगे, आपके काम के प्रोडक्ट लेकर आएंगे, और हम लोग मार्केट में जाएंगे। तो ई-बाइटोरम के साथ बिल्कुल डिटरमाइंड होकर आप बने रहो, किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं। जो लेवल पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग हमको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, राइट। तो टाइम टू टाइम पे आउट, टाइम टू टाइम टैक्स, और अभी बहुत सारी जगह पे हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। छोटी मोटी जो खामियां उसको भी हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो मार्केट में साहब आज के दिन में जॉब नहीं है। आज आप आईटी सेक्टर देखोगे, आईटी सेक्टर में पिछले 2 साल से कोई नई भर्ती हो नहीं रही है। जो लोग हैं उन्हीं को निकालने के लिए बैठे हुए। आज Amazon.com में 1,60,000 लोगों को निकाल दिया है। टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो 12-12, 15-15 हजार लोगों को निकाले। तो आने वाले दिनों में एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऑटोमेशन होगा, ह्यूमन बाईपास हो जाएगा, ह्यूमन की जरूरत नहीं रहेगी। और जिस लेवल पे आज हमारा भारत का पॉपुलेशन है 150 करोड़, तो उनको जॉब या तो कोई बिजनेस होना जरूरी है। और बिजनेस करने वाले दुनिया में सिर्फ 3% लोग होते हैं, 97% लोग जॉब करते हैं। जॉब में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। आप देखोगे आने वाले दिनों में रिसेशन बहुत बड़ा आने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है जिसको रिसेशन की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि आप अपना जॉब, अपना बिजनेस साइड बाय साइड करते रहो, और रोज अगर 2 घंटा भी अगर डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो, बहुत ही एथिकल लीगल वे से हम कर रहे हैं। हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने हमारे वेबसाइट पे डाले, सारे बैलेंस शीट हमने हमारे वेबसाइट पे डाले। तो ई-बाइटोरियम कानून के दायरे में रह के काम करती है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेचती है। ई-बाइटोरियम इज 100% प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी। ओके, और बेहतरीन प्रोडक्ट हम देते हैं जगह जगह पे, पिकअप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट। और मैं जितने भी लीडर है उनको कहना चाहूंगा कि आप अपना पिकअप सेंटर जरूर लेना। आपको 1 लाख रुपए का पिकअप सेंटर आपको होना जरूरी है,
क्योंकि कंपनी से प्रोडक्ट आने में वक्त लगता है। तो जब आप किसी को बिजनेस समझाते हो, प्रोडक्ट समझाते हो, तो उसी टाइम उसको प्रोडक्ट भी देना है आपको। तो कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास रखना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट जगह जगह पे होनी चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट की सप्लाई मिलती रहेगी। तो अभी हम लोग प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। सिर्फ अभी एक 7-8 दिन की बात है, 7-8 दिन में बहुत मजबूत स्थिति में हम चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर को हम लोग बहुत चीजें ऑटोमेशन में कर रहे हैं ताकि हमारा लोड कम हो जाए, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड बिजनेस। और केरला के जो लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में फैल जाओ। केरला में तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अपन कर ही रहे, थोड़ा बहुत हिंदी सीख लो। और जैसे रशीद भाई ने बोला कि कुछ हिंदी भाषी लोगों को जोड़ो, तो अपने आप पूरे हिंदुस्तान में आप जाना शुरू करोगे। और मैं खास करके गुजरातियों की बड़ी तारीफ करता हूँ। आज ये बिजनेस जब हमने शुरू किया ये ऑडिटोरियम का कोरोना के जमाने में 2021-20 में, तो गुजरात से हमारी शुरुआत हुई। और गुजराती तो हर जगह पे होते, तो गुजरात वालों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अलग अलग राज्यों में कहीं पे भी कनेक्शन आपको गुजरात का ही मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाओ, आप झारखंड में एंटर हो जाओ, आप राजस्थान में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ, आप कश्मीर में चले जाओ। अच्छा, हम पिछले 10-15 दिन पहले कश्मीर में थे। कश्मीर में भी हमारा बढ़िया ऑफिस खोला है हमने वहां पर। तो कश्मीर से लेकर केरला तक बहुत जबरदस्त तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। और एकदम जल्दबाजी के इसमें मत आओ, कोई लालच में मत आओ। कोई कंपनी आपको लालच दे रही तो आपको करियर बर्बाद करने वाला काम हो जाता है। वो एक ही जगह पे टिके रहो, बार बार कंपनी बदलने वाले का भी कोई हैसियत होती नहीं मार्केट में। तो ई बाइटरूम का डिटरमाइंड होके करो, क्योंकि रीपर्चेस अगर हमारा सेट हो जाता है, 5-7 हजार लोगों की अगर टीम बना देते हो, तो रीपर्चेस जैसी इनकम नहीं। और सबसे बेहतरीन पार्ट जो ई बाइटरूम का है आने वाले दिनों में, जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा, वो रहेगा रीपर्चेस। हैंग अप हो गया सर। प्राइस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो मार्केट की प्राइस से भी कम रेट में आने की कोशिश, जिससे पिकअप सेंटर की भी इनकम बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट की भी इनकम बढ़ेगी, लोगों को भी टाइमली ये इंटरनेट आवाज आ रहा है मेरा रशीद भाई? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, बीच में अटक गया। यस सर, आ रही है, बीच में थोड़ी अटक रही है आपके पास। राइट हाँ। Yes. तो अभी हम लोगों को बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट आप भी रिकमेंड कर सकते। और इवन जब हम कश्मीर में थे तो मैंने वहां पर हमारे चमेल सिंह करके है और प्रतीक कथोरिया को बोला कि कश्मीर के 3 से 4 डिफरेंट बेस्ट प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग हिंदुस्तान में लेकर जाएंगे। जैसे केरला में जो बेस्ट है, हर राज्य का अपना अपना स्पेशलिटी होता है, तो वहां के 3-4 प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में देंगे। जैसे आप झारखंड जाते हो तो वहां पे कोई बेस्ट होगा, कोई बिहार में कुछ अपनी स्पेशलिटी, यूपी की अपनी कोई स्पेशलिटी है, गुजरात की अपनी स्पेशलिटी, महाराष्ट्र की अपनी स्पेशलिटी। तो हर राज्यों के 4-4, 5-5 यूनिक प्रोडक्ट भी अगर हम लेते तो हम हिंदुस्तान वासियों को प्रोडक्ट देंगे बिजनेस के माध्यम से। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हजारों हाथों से काम आता है, यहाँ पर पैसा बड़ा नहीं मिलता है, यहाँ पर हजारों हाथों से काम होता है, तब जाके पैसा बड़ा मिलता है। तो कंपनी बहुत ही लीगल वे से, बिजनेस वे से जा रही है। तो आपको ई बाइटरूम के साथ बिल्कुल बना रहना है। और खास करके मैं आज इस मौके पे केरला वासियों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। मुरलीधरन जी है यहाँ पर, के सुरेश जी है, और यहाँ पर अभिलाष जी है, बेनी जोसेफ है, डैनी है, मीनेश है यहाँ पर, शाजी करके है, श्री कुमार है, उसके बाद एवरग्रीन मनोज मुरलीधरन तो है ही है। तो मेरे ख्याल से बेनी जोसेफ भी वहाँ के बिल्कुल पायोनियर लीडर है वहाँ पे। और जो भी तमाम लीडर यहाँ वहाँ गए हैं उनके लिए भी हम लोग बिल्कुल हम उनके ये है आभारी है, जिन्होंने भी हमें साथ दिया। आज हमारे साथ नहीं, हमें अफसोस है कि आज हमारे साथ नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से। लेकिन आज भी मैं उन सभी जो भी लीडर गए उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों का। मैं अगर जिंदगी में कभी दोबारा मिलने का मौका मिला तो हम जरूर उनके साथ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हेल्दी कंपटीशन से हम काम करेंगे और उनके साथ भी हमारा समर्थन रहेगा और सब जन मिलकर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे और एक फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ होती है। बाकी कोई आपके संकट के समय में सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ आती है, बाकी कोई नहीं आता है। तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एक लीगल एथिकल वे से, जीरो रिस्क लायबिलिटी से एक काम करने का प्लेटफॉर्म है। और बस इसको पकड़ के रखो, लॉन्ग टाइम के लिए पकड़ के रखो। 15 साल 20 साल ई बाइटोरियम में रहने का मकसद से आ जाओ। ये बाइटोरियम बिजनेस प्लान में अभी कोई भी चेंजेस लाने वाली नहीं है, खाली 0.25 0.50 अर्निंग वाइज हम करेंगे, वो जो बाद में हम बताएंगे आपको
जिससे आपको आपका काम इजी हो जाएगा, आपको आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम फोकस 100% फोकस हम रीपर्चेस पे कर रहे हैं। फर्स्ट परचेस तो अपना सुपर डुपर चल रहा है, फैमिली बोनस तो सुपर डुपर हिट है अपना। सुबह शाम अगर अपने टीम से 100 पीवी भी आप करवाने में कामयाब हो जाते हो तो भी बहुत अच्छी इनकम है, बहुत सॉलिड इनकम। एक केरला जैसे राज्य में या केरला जैसे शहर में रह के भी अगर आप 4-5 लाख रुपए अगर कमा लेते हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ पर पॉसिबल है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस में ये पॉसिबल है। और अभी किंतु परंतु खत्म हो गया आज, क्योंकि 5 years 5 month हमें हो चुके पे आउट देते देते, प्रोडक्ट देते देते। तो ई बाई ड्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी में आ चुकी है। हम सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को हम लोग वेलकम करते हैं, और हम कभी भी किसी की कोई भी कंपनी का हम कभी बुराई नहीं करते, कभी भी कोई इंसान की हम बुराई नहीं करते। सब अपने अपने जगह पे डायरेक्ट सेलिंग को ऊंचाई पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ई बाइडोरियम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऊंचाई पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई भी हम लोग कुछ भी उल्टा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल एथिकल वे से काम करेंगे। ई बाइडोरियम आपके लिए कमिटेड है, हर 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 तरीके से कमिटेड है। आप बिल्कुल कंपनी के साथ बने रहो। यहाँ पर स्लो एंड स्टडी पैसा मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम पैसा मिलेगा। ई बाइडोरियम करियर करने का बहुत अच्छा मौका आपको दे रही है, बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। बस और थोड़ा इंतजार करो आप, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स दूंगा जो आपकी नीड है, आपको लगेगा भी नहीं आपने रिपर्चेस किया। वैसे भी आमतौर पे कोई रिक्शा चलाने वाला भी है तो 15-20 हजार का परचेसिंग तो वो लोग भी कर लेते आमतौर पे ट्रेडिशनल मार्केट में जाके। तो हम चाह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो आप ई बाइड्रीम से खरीदो। ई बाइड्रीम का स्पेशलिटी बायोमैग्नेटिज्म तो है ही, लेकिन आज हमारे पास इतना बड़ा कस्टमर बेस बन चुका है कि हम बाकी के प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो इंसान ही खरीदेगा, और हमारे पास इंसान ही इंसान है। बहुत बार कंपनी किसी अलग मकसद से खुलती है, लेकिन फिर बाद में वो चेन अलग अलग प्रोडक्ट में आ जाती है। तो बायोमैग्नेटिज्म हमारा स्पेशलिटी है, लेकिन साथ साथ में हम और भी बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आएंगे। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट जो आपको डेली नीड की प्रोडक्ट है, जिससे आप जितनी बड़ी टीम बनाओगे उससे रीपर्चेज इनकम अगेन एंड अगेन आपको रीपर्चेज इनकम मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट रीपर्चेज ही रहेगा, और जगह जगह पे हम लोग ऑफिस खोलेंगे। अभी मेरी कोर कमेटी के लीडरों के साथ भी मीटिंग होगी आज कल में, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि गुजरात में किधर किधर ऑफिस खोलना है, राजस्थान में किधर ऑफिस खोलना है, कश्मीर में किधर खोलना है, बिहार में किधर खोलना है, कहाँ कहाँ पे स्टार्ट करना है। तो अभी 40 ऑफिसों की लिस्ट मैं बना रहा हूँ, और वहां पर तकरीबन 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का जगह होगा, और वहां पर जगह पे मटेरियल मिल जाए ये कोशिश हम करेंगे। मटेरियल के लिए हम लोग 200-300 स्क्वायर फीट की जगह रखेंगे, जहां पर एफएमसीजी, ग्रोसरी सबका स्टॉक रहेगा, और जो वो वहां पर डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज चलाएगा उसके लिए भी फायदा रहेगा, क्योंकि लोग वहां पर मीटिंगों के लिए आएंगे तो लगे प्रोडक्ट भी लेकर जाएंगे, तो प्रोडक्ट भेजने का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग सारे लीडरों का सजेशन लेके जगह जगह पे ऑफिस खोलेंगे, क्योंकि जो अभी हमारा बजट है वो हम इधर डालेंगे, और हमने मीटिंगों के लिए भी हम पैसा देते तो वो पैसा भी अपना बचेगा, तो अपन ज्यादा से ज्यादा ऑफिस खोल सकते हैं। तो ये आइडिया कैसी लगी आप मुझे जरूर आपके लीडरों के साथ बताइए। और अभी हमारा ई बाइडर में कम्युनिटी चैनल है, हम उसके थ्रू ही टच में रहेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में भी बहुत सारी चेंजेस है, ये बहुत कम ब्रॉडकास्ट करने देते हो। तो कम्युनिटी, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारा जो टिकटिंग सिस्टम है, आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो यह है टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे तो आपको हमारे ऑफिस में किसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर भी पड़ेगी तो टिकट जनरेट करने का एक मेथड आप समझ लो। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को आप जरूर उसमें डालना दिमाग में कि कैसे क्या करना होता है। तो आज के दिन मेरे ख्याल से इतना ही। मैं रशीद भाई से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी मौजूद है उनको थोड़ा ऑफिस दिखाया जाए, मैं भी देखना चाहूंगा। सर मैंने आपको 2 लिस्ट भेजा हुआ है, ये वहाँ के टॉप लीडर्स। अच्छा, राइट टॉप लीडरों में अभी लगभग 40 नेम्स है। राइट अभी मैं नाम गिनता हूँ। बेनी जोसेफ हो गए, मनोज मुरलीधरन हो गए, अभिलाष जी है, एंथनी बोटिस है यहाँ पर, डीजे त्रिशूर करके कोई है, कोई नाम है के गांव का नाम है, डैनी अगस्टीन है, दर्शिया बालन, बालाघाट, हाँ, जॉर्ज पाला है, हमजा है, हुसैन केर है, देन जॉन है, मंजुला एडमैन है करके कोई है, मोहन एडवोकेट, अच्छा एडवोकेट, हाँ, मंजुला मैडम है, मनमोहरान करके कोई है, मनोहरन, मिनेश जी है, मिनी जॉय है, उसके बाद नवाज केर है, नेक्सॉन है,
पीटे साजी है, रियाज है, शाकिर, हाँ, साकिर है, सरम्मा है, शिबू जी है, श्री कुमार है, देन सुरेश के बहुत बढ़िया लीडर है, टी जॉर्ज है। तो छोटी छोटी चीजों पे हम लोग का विजयन है, उत्तम जी है, उसके बाद विपिन है, विष्णु है, यूनुस जी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स वहां पे काम कर रहे हैं। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं जूम पे आऊंगा, जो भी हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करेंगे, कभी भी कोई चीज को हम लोग ये नहीं करते। जब भी जरूरत होगा मुरलीधरन, मनोज मुरलीधरन या बेनी जोसेफ या रशीद जी मुझे जब भी बुलाएंगे मैं जूम पे आऊंगा। और कभी वक्त मिलेगा तो मैं केरला जरूर आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहा हूँ। एक अच्छा सा प्रोग्राम है, गेट टुगेदर भी बहुत जल्दी रखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो इसी तरह से प्रोग्रेस करो और साइड बाय साइड आपका जॉब, आपका बिजनेस करते करते डायरेक्ट सेलिंग ई बाइटोरियम करते रहो एथिकल वे से। आपको आपकी मेहनत का पैसा ई बाइटोरियम टाइम टू टाइम देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हम देंगे। अभी हम पूरा फोकस ऑटोमेशन और रीपर्चेस के ऊपर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में रीपर्चेस देखकर ही लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि लोगों को लॉन्ग टाइम का करियर चाहिए। क्योंकि आज छोटे छोटे, आज 4 महीना वो कंपनी, 5 महीना वो कंपनी, 10 महीना ऐसा कर करके लोग जिंदगी काट रहे। तो हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाएंगे कि अगले 25 साल, 30 साल, 100 साल तक आप काम कर सकते। इस लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं। और ये ऑनगोइंग इनकम है। आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कि अगर आपने यहाँ पर अच्छी तरह से नेटवर्क खड़ा कर दिया, अच्छी तरह से अपनी लीडरशिप की, तो हम इस दुनिया में रहे ना रहे, पैसा आता रहता है। तो वो मकसद रख के आप काम करो, लॉन्ग विजन से काम करो। इधर की टीम उधर, उधर की टीम, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो है एथिकल वे से, जो बंदा जिसकी टीम में वहीं पर बैठ के काम करो आप। तो बाकी हम केरला में जिन जिन लोगों ने हमको साथ दिया उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि वहां पर ऑफिस अगर आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी कुछ ऑफिस अगर दिखा सकते हैं मनोज सर? ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर मोबाइल पे चालू है जूम तो वो क्या ऑफिस का दौरा करा सकते हैं अभी हम? हाँ। ठीक है, रशीद सर, ऑफिस का टूर। रशीद सर, मैंने कम्युनिटी का लिंक भेजा है। हाँ। तो ई बाइटोरियम कम्युनिटी है ऑफिशियल। तो आप लोग वही बोल देना कि इस पे फॉलो करेंगे तो इनको राइट टाइम प्रॉपर नॉलेज मिलती रहेगी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से ई बायोटोरियम कम्युनिटी एक लिंक बना हुआ है, वहां पे लोग ऐड होएंगे तो कंपनी से डायरेक्ट पूरा अपडेट्स मिल जाएगा। मनोज सर ये जरा डिक्लेयर कर देना, ठीक है? എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഒരു സൂചന ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ, ഈ ബയോട്ടോറിയം കമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ആ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാല് കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഡയറക്റ്റ് കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും. സാഗർ സർ ഇതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. സോ ഇത് നല്ല പ്രോഗ്രസ് ആണ് डेवलपमेंट വേണ്ടി. यस सर, मिला है, वो कम्युनिटी लिंक मिला है सबको, सब जो इसमें एंट्री किया है। तो सागर सर एक रिक्वेस्ट है हमको, अभी सागर सर नेक्स्ट महीने दिसंबर लास्ट में केरला में आना है। तो केरला में बड़ा प्रोग्राम आने वाला है। तो 3000 केरला बायोटोरियम फैमिली का 3000 मेंबर का है। अब जरूर आना चाहिए दिसंबर लास्ट में, क्रिसमस के बाद, ठीक है ना? yes, definitely. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഒരു പുതിയ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. സാഗർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗുജറാത്ത് ആൾക്കാരെയാണ്. നമ്പർ 1 ടീം ആയിരുന്നു ഗുജറാത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗില്. ഓക്കെ, പിന്നെ കേരള കയറി വന്നു നമ്പർ 1. 3 വർഷം കേരള ടീം 1 നമ്പർ പൊസിഷൻ പിടിച്ചു. 3 വർഷം. പക്ഷെ ഇപ്പോ കർണാടക ടീം, തെലങ്കാന ടീം, ആന്ധ്ര ടീം കയറി വന്നു. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ വരാം. ഇപ്പോ ഓഫീസ് കേരളക്ക് കിട്ടി, പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു നല്ല ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഓക്കെ, 3 years റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോടീശ്വരൻ. 3 years നമ്പർ 1 പൊസിഷൻ കേരള ആൻഡ് 10 കോടി കരോഡ്പതി. ഇപ്പോ ഓഫീസ് കിട്ടി, പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. ഇപ്പോ നമ്പർ 1 കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര ഉണ്ട്, ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്. സോ കേരളയിൽ ഇപ്പോ പുതിയ റിട്ടേൺ തിരിച്ചു വരണം. ഓക്കെ, नंबर 1 केरला आएगा, देखो नंबर आएगा, कभी नंबर 1 केरला, नो डाउट। बिल्कुल। मैं इनको बोल रहा था सागर सर, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही प्यारे लोग हैं केरला के, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मेन मतलब वो काम से काम मतलब रखते हैं, कोई फालतू काम नहीं करते, ओनली काम। सर मैंने इनको बताया कि जब भी आपने शुरू किया था ई बायोटोरियम, गुजरात नंबर 1 टीम था, गुजरात के थ्रू पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ, लेकिन उनका टाइटल जो है केरला टीम ने लिया नंबर 1. 3 years के लिए हम लोग नंबर 1 थे केरला टीम का. और 10 करोड़पति भी बने वहां पे, फास्टेस्ट करोड़पति भी बने, 10 months में करोड़पति बने. लेकिन 3 साल के बाद अभी माहौल कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा के हाथ में गया हुआ है. अभी हमको ऑफिस मिला दोबारा नंबर 1 पे आने के लिए, तो उसको अच्छे से यूज करो.
ठीक है, बिल्कुल एक्सपैंड करो, ठीक है, बिल्कुल डिटरमाइंड होके काम करिए। यस, परफेक्ट, यू आर राइट। ठीक है। सो जो ऑफिस का जो इनका ये है, अगर अभी दिखा सकते तो ठीक है, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो हम लोग डाल देंगे ग्रुप के अंदर। कुछ मोबाइल से नहीं दिखा सकते थोड़ा बहुत? मोबाइल से अगर दिखा सके तो अच्छा रहेगा। मनोज सर, मुरलीधरन साहब के पास होगा? मोबाइल ओके, आगे है ना? रेमोन किसको हाईलाइट करना है? कर दिया आगे हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, आगे आगे आगे, ओके ओके। ई बायोटोरियम नेटवर्क, ओके सर, देखिए सर, यस यस ई बायोटोरियम नेटवर्क ये क्या एंट्रेंस बात पर है। हाँ, जोरदार ये जोरदार, एंट्री है, राइट पे रिसेप्शन है, खूबसूरत। लेफ्ट पे अपना बोर्ड था, ये एंट्री करके राइट पे रिसेप्शन। ओके, ये लीडर्स कैबिन, क्या बात है। बोर्ड रूम वो डैनी सर बैठे, हमारे डैनी अगस्टिन, नमस्कार अभिलाष नमस्कार। सर के साथ, अभिलाष सर, डैनी सर, डैनी अगस्टिन। ये सर लेटेस्ट करोड़पति हमारे टीम के, ये 11वां या 12वां करोड़पति है केरला के, अभी जस्ट लास्ट वीक बने, डैनी अगस्टिन। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन टेबल्स है लीडर्स के लिए। वो डाइजो है, वो के एस सुरेश बैठे उधर कॉर्नर में। के एस सुरेश जरा दिखा ना, पिछले कंपनी का 4 करोड़ अचीवर है। क्या बात है, ये जॉर्ज सर है, बहुत बढ़िया, जोरदार। ये सर आपका बैनर पोस्टर, वहां पे सागर सर एक पोस्टर, ये आज का ओपनिंग का आरती क्या बात है, मॉर्निंग को किया गया। जोरदार। केरला स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, यस, ब्यूटीफुल, जोरदार। ओके। ये बैठे लीडर्स वहां पे, कोर टीम लीडर्स है, सब मेन लीडर्स आए हुए हैं यहाँ पे, कोर लीडर्स। बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार। वो बेनी जोसेफ बैठे आगे उधर व्हाइट कोट में, और ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट। बेनी सर अपकमिंग करोड़पति लीडर है, 80-90 लाख पर है। बिल्कुल, आज तो पूरा केरला माहौल है आज तो अपने इधर। ब्यूटीफुल, जोरदार। सभी केरला वासियों को नमस्कार, जोरदार। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है सबको वहां पे केरला में? बिल्कुल, यस ओके ओके ओके। ग्रेट अरेंजमेंट्स, ऑल द कोर लीडर्स, साउथ इंडियन टीम, लगभग 40 लीडर्स का यहाँ पे मैंने नाम पढ़ा अभी। सागर सर ने नाम सबका अनाउंस किया वहां पे। कुछ लोगों का नाम छूट गया है, मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा। जैसे बाबू है, पैना कैडिक है, बिना है, जयमोन है, जैसन है, मोहम्मद अली है, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर। रामा है, शाजी है, तो अभी अपने नाम मुझे भेजे। बिल्कुल बने रहिए सब जन, ओके। जिगु निजार, श्री कुमार, सुरेश के एस, टीडी जॉर्ज, उत्तम जी, विजयन, विपिन फ्रॉम त्रिवेंद्रम, विष्णु, यूनस, बबीता। यस, ये सेकंड लिस्ट है। बाबू, बेनेडिक्ट विंसेंट, बीना शाहजन, चंद्रन, जयमोन जोसेफ, जिनसन, मोहम्मद अली, मुस्तफा, नेटूरन, ओमाना, जोशी, रामाचंद्रन, शाजीमोन, शिबू गोपालन, सुजानन, उषा राजू, एक्सेट्रा। सो नियरली 40 कोर लीडर्स केरला का, ठीक है। हार्ड वर्क करके आप लोग कोर टीम में आइए, फिर सुपर कोर में आ जाइए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, शॉर्ट नोटिस में सब जन आए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। प्रॉपर यूज करो, 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए ऑफिस का, 2% 10% नहीं चलेगा, ठीक है। सही सही। ठीक है। और सागर सर को थैंक यू वेरी मच सर, इसके लिए आने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी केरला के लिए पर्सनली आके आपका टाइम दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, यस ताकि टीम नंबर 1 पे दोबारा आ सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस प्रतीक, ओवर टू यू। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द केरला टीम। और ऐसे ही आपके टीम में और मतलब ब्लैक डायमंड्स क्रिएट हो, और ऑलवेज सपोर्टिव सागर जोशी सर, हमेशा ये उनका नेचर है, आप पूरा सपोर्टिव नेचर। और आज अगर कंपनी का ये जो कहते हैं बेंचमार्क क्रिएट हुआ, तो बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली सागर जोशी सर एंड द क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी
what our leaders have. So congratulations Rashid sir also for you कि आपकी टीम में इतने ब्लैक डायमंड्स क्रिएट हो रहे हैं. So that's your also, ये आपका जो एक प्रयास है, जो आपका एक कंसिस्टेंसी है, उसका ये रिजल्ट है. That much black diamonds are created in your team. So again congratulations to all the Kerala team. Go ahead for a big success and I wish and I believe कि और कई सारे ऑफिसेस आपके केरला में क्रिएट हो और ये थोड़े से छोटा सा ऑफिस भी जो आपने भी ओपन किया, बड़ा ऑफिस, ये भी छोटा पड़ जाए, इतना आपका सक्सेस रेशियो आने वाले अगले 6 महीने में इंक्रीज हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम. कांग्रेचुलेशन रशीद सर, सागर सर एंड ऑल ऑफ यू जितने आज पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए, पैन इंडिया से कनेक्ट हुए. देखिए एक इंस्पिरेशन आप सबके लिए भी है कि केरला में जहाँ लोग अगर इतना एक्साइटमेंट के साथ काम कर सकते हैं तो ये प्रूफ करते हैं कि अगर आप लोग भी चाहो तो आप भी एक बड़ा बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हो अपनी स्टेट में, अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अपनी वर्किंग के साथ. क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, प्लान सबके लिए सेम, प्रोडक्ट सबके लिए सेम, सिर्फ फर्क है. तो फर्क सिर्फ 3 चीज का है जो मैं मानता हूँ रशीद सर. वो पहला है जिद का, दूसरा है भूख का और तीसरा है पागलपन का. ये 3 का जो कॉम्बिनेशन किसी में अगर आ गया उसने सक्सेस हासिल कर ली. वो चाहिए जिद, चाहिए भूख और चाहिए पागलपन, और वो केरला टीम में तो कूट कूट के भरा हुआ है. तो अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच सागर सर फॉर गिविंग. प्रतीक भाई एक छोटा सा वीडियो बना के अगर भेजेंगे ना तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा. तो बाहर से स्टार्ट से ना मुरलीधरन साहब को बोल देना एक बढ़िया वीडियो और लीडरों के एक्साइटमेंट के साथ एक वीडियो करके भेज दीजिए. ओके, डन से डन. सब जन वीडियो मांग रहे तो आप बहुत सारे लोग देख नहीं पाए प्रॉपर्ली, तो एक खूबसूरत सा वीडियो बना के भेज दीजिए. ओके डन. रशीद सर प्लीज डू द नीडफुल ऑन अ अर्जेंट बेसिस. थैंक यू. सो इसी के साथ हम लोग अभी देखें कि केरला टीम नंबर 1 पर था 3 साल, जिसका रिवॉर्ड अभी कंपनी ने उनको एक ऑफिस के साथ दिया हुआ है. 10-11 करोड़पति बन चुके हैं. एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डैनी अगस्टिन फॉर बिकमिंग द लेटेस्ट करोड़पति इन केरला. ये सब रोल मॉडल है. मनोज सर फॉर बिकमिंग द फर्स्ट करोड़पति इन 10 मंथ्स. तो यहाँ पे अच्छे अच्छे लाइव मॉडल्स है आपके सामने. और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टेट से बड़े लीडर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को भी जो टास्क दिया है अपने अपने टीम्स को डेवलप करने का, वो टीम के ऊपर फोकस करो. सागर सर ने मुझे टास्क दिया था केरला डेवलप करने का और वहां के लोग में इतना पोटेंशियल था. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू लीड सच अ ब्यूटीफुल टीम, मेक इट नंबर 1 फॉर 3 years कंसिस्टेंटली विद 10-11 करोड़पतिस. मैं चाहता हूं कि पूरा इबाटोरियम इस तरीके से सभी लीडर्स अपने अपने जिम्मेदारी रहे, टीम के साथ मिलकर काम करें. ठीक है, हेल्प द टीम टू बी नंबर 1. एंड लीडर्स का जो पंचलाइन है, लीडर्स बाय एक्शन होना चाहिए, नॉट लीडर्स बाय पोजीशन. ओके, सो लर्न टू बी लीडर्स बाय एक्शन, नॉट बाय जस्ट पोजीशन. ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लीडर्स बाय पोजीशन भी बैठ जाते हैं आगे. ठीक है, सो लर्न टू बी लीडर्स बाय एक्शन बनो, टीम के साथ मिलकर काम करो. खाली ऊपर बैठ के खाली यहाँ पे देखना नहीं है कि कौन काम कर रहा है, आप लोगों को मिलकर काम करना है. जैसा मैंने केरला के साथ 4 years मेड इट नंबर 1. नाउ इट्स योर ड्यूटी. सभी लोगों को अपना अपना जो स्टेट संभाल रहे, सभी लोग अपना अपना स्टेट संभालो. जो लोग डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे डिस्ट्रिक्ट संभालो. छोटे लीडर्स अपने छोटे टीम संभाल रहे, छोटे टीम को संभालो. Focus with your group and make it number 1. ठीक है, so thank you very much. Wish you all the best. God bless you all. Rashid sir, please need the video on an urgent basis. Thank you. Okay, thank you. हाँ.